yes, very much. ओके, फैंटास्टिक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, और थोड़ी देर में विल गो लाइव। आई स्टिल सी पीपल ज्वाइनिंग इन, तो 1 मिनट रुकते हैं और Sure. फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस बेहतरीन शाम को हम शुरुआत करते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण परमार। सो वी आर thrilled to have you on this live, and you're definitely going to be an asset to our listeners, and I just can't wait to talk about your accomplishments, because you have been extraordinary, absolutely, coming from a small town and making on top of Jagat with Vyapar Jagat is absolutely awfully, I mean, it's like truly inspiring and incredible journey. So for those who don't know you, a quick introduction about Dr. Praveen. Dr. Praveen is founder and CEO of VyaparJagat.com and Equities Information Technology Private Limited. He is from Botad and living in Ahmedabad since 2003. When he came from, for his higher studies. He comes from a farmer family and has a career path from farmers to IT business owner. Absolutely inspiring for all of us who are from small town and have, small dreams. So I think you're a live example that how to convert those small dreams into big ones. So really, really very thankful for you, to you, Dr. Praveen, to come on this platform and share your inspiring story. So by qualification, he has degrees of BCA, MCA, MCP and technology specialist, and honored with professional doctorate in management studies. In recognition of lifelong learning and dedication to hard work, he has gained knowledge from personal experience and through example of others. And today I'm sure you're setting an example. You are an example for everyone. He has been awarded with Medal of Honor by KIU South Korea. He has worked with Microsoft Corporation as a Microsoft student partner. He's an entrepreneur from an early age, started his first startup when he was just 20 while pursuing his BCA. Coming from a very small town in Gujarat, growing up in farmer's family where trade and skills were the most important thing than education, he was a black sheep for sure, pursuing academic excellence. As he grew in his career, battling highs and lows, he learned a very valuable lesson that if you have to grow, you must help others grow. So I think you are a visionary, Dr. Praveen, क्योंकि आज के ज़माने में we often forget it. हम अपनी ही दौड़ में लगे रहते हैं. We just try to achieve, and once we achieve, we actually forget वो सभी लोग जिन्होंने हमें मदद की है या जो हमारे जैसे हैं, जिनको हम प्रोत्साहन दे सकते हैं. तो मैं भी आपको काफी सुनती हूँ और व्यापार जगत से भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ. सो आई नो दैट आप किस तरह से लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और लोगों को बढ़ने का मौका दे रहे हैं. बट आई वुड जस्ट लाइक टू हियर फ्रॉम यू. सो टेल अस अबाउट योर जर्नी कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन इन गुजरात एंड नाउ बीइंग अ super successful entrepreneur. How your journey has been? Yes, Rekha. So first of all, thank you so much for inviting me to this particular Insta Live. And yeah, so I think when we talk about the journey, so definitely mine was also a roller coaster ride. I mean the journey, and yeah. So as you have also mentioned in the introduction itself, where I'm coming from a farmer family, I'm coming from a small town which is called Botad, part of Saurashtra region. Yeah. So now there are multiple chapters I have in my journey, right? And so जैसे हम बूढ़े होते हैं, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो मतलब आपका जो जर्नी है वो जर्नी में बहुत सारे चैप्टर्स मेंशन होते हैं. सो आई वुड लव टू I would like to divide the entire journey into multiple chapters. So I'll begin with my childhood. So, as you have already mentioned, I'm coming from a farming family. So एक छोटा सा परिवार थी जहाँ पे हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे. एंड वी यूज्ड टू लिव इन फार्म इटसेल्फ. तो हमारा जो फील्ड था वहाँ पे हम रहते थे. एंड when I started my primary education, so in those days I used to go to school. और उस टाइम पे मतलब प्राइमरी और स्पेसिफिक जो स्कूल होती है, जो प्राइवेट स्कूल होती है,
इसमें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे पापा के पास, तो आई वॉज यूज टू गो टू म्यूनिसिपल स्कूल। तो वहाँ पे बोटिंग म्यूनिसिपल स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे मैं मतलब प्राइमरी एजुकेशन मेरा वहाँ पे हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन इज इन गुजरात मेडिकल। अगेन अब म्यूनिसिपल स्कूल की बात करते हैं तो काफी सारी चीजें जो है वो डॉक्टर प्रवीण, वी आर लूजिंग यू। आपकी आवाज ऑन एंड ऑफ आ रही है। सॉरी, इफ यू कैन जस्ट चेक योर माइक और कनेक्शन। एब्सोल्युटली। Sorry to cut you, but it wasn't clear. That's why I had to. Alright, how is it now? It's better. Alright. Yeah, so that was the the primary school जो था उसका journey, and then then I entered into the secondary school. Secondary में when I प्राइमरी स्कूल में मेरा जो एजुकेशन था उसमें पापा को शुरू से ऐसा लगा कि ये बच्चा जो है वो ये पढ़ने वाला बच्चा है, क्योंकि हम जिस फैमिली से आते हैं वहाँ पे कोई एजुकेटेड नहीं था, तो इसको पढ़ाते हैं और इसको अगर कुछ अलग लाइन में जाना है तो जा सकता है। नॉर्मली हमारे वहाँ पे 10 students हुआ करते थे। लोग जो है वो खेत में काम करते थे, और दूसरा यहाँ पे लोग जो क्या बोलते हैं उसको डायमंड जो होते हैं, राइट, वो होता था भावनगर डिस्ट्रिक्ट और बोटाद में होता था। तो ये दो मेजर चीजें थी वेरिन पापा ने सोचा कि इसको पढ़ाते हैं, तो फिर उन्होंने 8th स्टैंडर्ड में आया तब डिसाइड किया कि इसको प्राइवेट स्कूल में बिठाते हैं, और फिर वहाँ से मेरा एक्चुअल जो है वो लर्निंग स्टार्ट हुआ। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग द डिसिप्लिन से कि स्कूल की क्या रूल्स होते हैं, क्या डिसिप्लिन होते हैं, तो वो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब प्राइमरी स्कूल में था तो आई हैड नेवर लर्न अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था। एंड दैट्स हाउ आई वाज स्ट्रगलिंग इन इंडिया, इंग्लिश नहीं आता था। एंड उस टाइम पे उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में एक ऐसा इलेक्टिव सब्जेक्ट होता था कि आपको इंग्लिश में पढ़ाई करनी है या हिंदी में करना है। तो हमारे यहाँ पे जो गुजरात बोर्ड है उसको वो चूज था, तो ऑब्वियसली आई टूक हिंदी एज माय सब्जेक्ट, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग ये सेकेंडरी और मैट्रिक एजुकेशन। देन 11th स्टैंडर्ड एक टीचर ने मैं बोला कि आज आप चॉकलेट भी लेते हो तो चॉकलेट का जो वेपर है वहां पे कौन सी लैंग्वेज की चीजें लिखी हुई होती है। तो बचपन से एक ऐसा दिमाग में था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, मतलब पूरी दुनिया देखनी है, क्योंकि सिर्फ एक जैसे गांव में रह के पूरी लाइफ नहीं करनी है। तो फिर आई सडनली समथिंग स्टक इन माय माइंड एंड आई थॉट कि नहीं, मुझे इंग्लिश पढ़ाई है। तो 11th में मैंने भी टीचर से बात करी, एंड इट वाज फॉर की जहाँ पे हिंदी के स्टूडेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, और प्रिंसिपल सपोर्टेड, आई मेड ए टीम जहाँ पे 10-12 और स्टूडेंट को पूरी किया, हमने सबने इंग्लिश में स्विच किया। दैट्स हाउ इन 11th 12th आई क्लियर्ड माय 10th एग्जाम एज वेल एज 12th एग्जाम। ये स्टोरी वहाँ का भी था। आई एंटर्ड इनटू हायर सेकेंडरी में मन से पढ़ाई करी। आई स्कूल 4th इन द डिस्ट्रिक्ट। That's how I reached अहमदाबाद। 2003 में अहमदाबाद में आया। तो अहमदाबाद में जब आया तब माइंड बिल्कुल क्लियर था कि अब तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि वो जो जहाँ पे मैं रहता था वहां से जो निकल के में आया हूँ, तो यहाँ पे ये टाइम जो है इसको मुझे जस्टिस देना है, और मैंने डिसाइड किया कि अब मन से पढ़ाई करनी है। So that's how I started my graduation. मैंने BCA नवगुजरात कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अहमदाबाद से किया। देन आई वर्क हार्ड, और मैंने वन से एक सोच बना रखी थी कि मैं जो भी देखूं, जो भी सुनूं, वो एक भी वर्ड मेरे लिए जार्गन नहीं होना चाहिए। मतलब जो कुछ भी मैं सुनता हूँ उसका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए। तो मैं मतलब जो AMT बस में भी जाता था तो मैं हर बार देखता रहता था कि मतलब जो भी वर्ड देखूं सब कुछ लिख लेता था। एंड आई यूज्ड टू कीप अ डिक्शनरी इन माय बैग ऑलवेज। तो मैं मतलब बस में भी देख लेता था हर एक चीज का मीनिंग। तो दैट्स हाउ आई गॉट यूनिवर्सिटी रैंक इन माय ग्रेजुएशन टाइम। एंड मैंने सोचा कि चलो अभी मतलब
फाइनेंशियल स्ट्रगल तो था ही। तो जब मैं सेकंड ईयर बीसीए में आया तब मैंने अपना खुद का एक एकेडमी छोटा सा स्टार्ट किया। वो भी ऐसा ही था कि दो फ्रेंड्स से बात करी, एंड एक फ्रेंड के पास एक शॉप था खुद का, दूसरे फ्रेंड के पास एक कंप्यूटर था उसका। तो तीनों लोग एज पार्टनर मिल गए और फिर हमने एक एकेडमी स्टार्ट करी, एंड स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स। तो मेरा जो मैंने बताया कि मैंने जो एकेडमी स्टार्ट किया था, वो एकेडमी में मैंने काफी सारे बच्चों को, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, इवन आई वाज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स जो मेरे से सीनियर, मतलब अभी थर्ड ईयर बीसीए में एमसीए वाले को पढ़ाता था। कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चीजें आती थी, तो वो था। एंड आई वाज वेरी हैप्पी, एंड आई वाज थिंकिंग कि बस अभी ये सही बात पे मैं चल रहा हूँ। हाउ यू नो मेरे फाइनेंशियल जो थे वो मैनेज किया। Then I entered into MCA. MCA पोस्ट ग्रेजुएशन था, इट वाज अ बिट टफ फॉर मी, जहाँ पे मैंने अहमदाबाद की सबसे जो टॉपेस्ट कॉलेज थी उसमें एडमिशन लिया। एंड वो एडमिशन लेने के बाद देयर वर लॉट ऑफ क्या बोल सकते हैं अपने डिसिप्लिन और रूल्स थे कॉलेज। इसमें आई वाज स्ट्रगलिंग बिकॉज पार्ट टाइम एक एकेडमिक था और फुल टाइम एक एमसीए प्रोग्राम भी करनी थी। तो उसमें मैंने काफी सारी चैलेंजेस फेस करी, बट फाइनली आई क्लियर्ड माय एमसीए एंड आई वाज सिलेक्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट। So yeah, so that was one new turning point for Microsoft में काम करने का मुझे मौका मिला। And I learned lot many things about Microsoft technology, काफी सारी कैंपस एक्टिविटीज करते थे। And then उसके बाद I joined a company wherein I was working as a ERP consultant, टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए वहाँ पे प्रोग्रामिंग और कस्टमर से बात करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना। तो वो सारी चीजें जो मैंने वहाँ से सीखी। देन सो दैट वाज द फर्स्ट जॉब। उसके बाद में आई हैड सेकंड जॉब। सेकंड जॉब जो है वो मैंने चॉइस से लिया था, बिकॉज आई हैड अ माइंड कि मुझे बिजनेस करना है। तो बिजनेस करना है, एंड आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो चैलेंजेस आएगी, फिर मैंने सोचा कि पहले किसी कंपनी में एक साल 1.5 साल काम करते हैं, देन आई विल स्टार्ट। तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू कंपनी जहाँ पे मुझे मैनेजमेंट में एक रोल मिल रहा था। तो आई हैव अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव वर्क एज द डिपार्टमेंट हेड फॉर 1 year, and then I started my own venture in 2011. I don't know, Abrika, I'm not reading the story, but do you have time? I mean, you will continue or you? No, no, please continue. It's very interesting. And as I'm saying, you're an example of, studying in Hindi medium till class, 10, 11, and then landing to Microsoft. I think you are so inspiring and so interesting to hear you because, usually, so I think one takeaway is that fine, English language is important, but more important is your hard work and your reasoning and analytical power. So all those who are listening to us, भाषा तो एक माध्यम है, बट आई थिंक बेसिक ज्ञान और वो नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कर्मठता होती है और जो परिश्रम हमें करना पड़ता है, आई थिंक यू आर लाइव एग्जांपल। मतलब माइक्रोसॉफ्ट इज अ ड्रीम कंपनी। आई माई सेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, सो माइक्रोसॉफ्ट इज डेफिनेटली ड्रीम कंपनी फॉर all of us. So you landing there, I mean, I think it's one dream you already achieved, I guess, and then you started dreaming more, and now you are realizing others dreams also. अपने सपने को तो आप पूरा कर ही रहे हैं, बाकियों को भी आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सपना देखने का। So I think you have an incredible journey, and अब ये आपका सक्सेस तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे आपने फ्रॉम डिक्शनरी पास में रखने से एक एक साइन बोर्ड्स को देख देख के समझने से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक। बट आप ये बताइए कि आई एम श्योर इस पूरे जर्नी में बहुत सारे रिजेक्शन हुए होंगे, बहुत टाइम पे आप गिरे होंगे, एज एन लॉसेस होंगे या कुछ होगा, तो आपने उन सबको कैसे हैंडल करा? आपने वो करेज कैसे गैदर करा कि नहीं मैं वापस करूंगा? बिकॉज आई थिंक अभी हम में से जो हम सभी लोग हैं, कुछ भी रिस्क लेने से पहले डरते हैं, तो आपने व्हाइल यू न्यू योर लिमिटेशंस कि आप एक छोटी जगह से हैं, कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपने कैसे वो करेज लिया रिस्क लेने का? और जब आप कभी रिजेक्शन भी हुआ तो आपने उसको कैसे फेस किया?
सी रिजेक्शंस तो बहुत हुए हैं मेरी लाइफ में, एंड सो हर बार देखो ये एक जो सेल्फ मोटिवेशन का एक जो पॉइंट होता है, राइट, मतलब वो बदलता रहता है। अब आज की डेट पे आप मुझे पूछोगे तो दैट पॉइंट इज डिफरेंट। जो उस टाइम पे जो मेरा जो एक पॉजिटिव रहने का जो पॉइंट था वो नहीं था, बट वो हर बार मतलब मुझे ऐसा था कि आई आई वांट टू डू समथिंग बिग, और कुछ चीजें ऐसी करनी है कि जहाँ पे जो स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मतलब जो जो चीजें मैंने देखी है वो मेरे जो बच्चे हैं उनको वो सेम चीजें जो है वो दोहरानी ना पड़े, और जो गालियां मैंने खाई है या जो ठोकरें मैंने खाई है उनको रिपीट ना करने पड़े। तो वो मोटिवेशन हर बार बना रहता था कि कुछ ना कुछ करना है। तो मतलब क्या है कि ये हम जो भी सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं, हम जितने भी कोट्स पढ़ते हैं, तो आई आई बिलीव इन कोट्स, क्योंकि हर एक जो भी कोई बंदा एक चीज आपको देता है तो वो कोट जो है वो कई बार उसकी पूरी लाइफ का एक समरी होता है जो वो 2 लाइन में या 1 लाइन में बताता है ना। तो मैं ऐसे काफी सारे कोट्स जो है वो बार बार पढ़ते रहता था। तो वो सारे कोट्स जो है वो मतलब देखने के बाद या फिर दूसरे लोगों की जर्नी देखने के बाद मुझे लगता था कि ये फेल्योर नहीं है, मतलब क्योंकि लोग मेरे से बड़े जो चैलेंजेस है वो भी लेके फेल होते हैं। तो मैं जो अभी कर रहा हूँ, जैसे कि ऑफिस में 10 लोगों को रख के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये फेल्योर नहीं है, इट इज समथिंग जो मुझे आता नहीं है और इसी वजह से मैं फेल हुआ, है ना। तो आई आई लर्न दोस लेसंस, एंड आई स्टार्टेड इम्प्रोवाइजिंग माय सेल्फ, एंड जो जो एक एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक स्टार्टअप चलाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है कि आपका सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, जो भी चीजें आप करते हो, या फिर आपका आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है। तो मैं हर बार वही सोचता रहता था कि मैं अभी मतलब कितना बना हूँ, मतलब चीजें जो है वो मेरे सामने आती है, बट उसमें अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो इट इज नॉट समथिंग कि ये इम्पॉसिबल है, बट इट इज समथिंग कि आई हैव टू डू अनदर ट्राई। तो वैसे आई आई विल इवन टुडे आल्सो आई लुक चैलेंजेस इन दैट वे, कि अगर और मैं हर बार कुछ ऐसा ही करता हूँ कि जो मैंने कभी नहीं किया है। तो आज की डेट में भी हम जो भी इवेंट्स करते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वो मैंने कभी नहीं किया है, और जो मैंने लाइफ में कर चुकी हूँ वो मैं जल्दी रिपीट नहीं करता हूँ। तो आई आई ऑलवेज विश कि मैं कुछ नई चीजें करूँ, एंड आई कीप माई सेल्फ, एंड मैं मेरे ही experience से इसको जो है वो अपडेटेड रखूँ। तो दैट इज माय थॉट प्रोसेस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दैट इज व्हाट, मतलब आपने मिस्टेक्स या जो भी बोलते हैं उनको आपने एज एन एक्सपीरियंस लिया, और आई थिंक बोलते हैं ना ठोकरें हमको ज्यादा सिखाती हैं. सो आई थिंक दैट इज हाउ यू लर्नड, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल, एंड दैट इज हाउ वी ऑल शुड बी मोटिवेटेड, बिकॉज टिल वी आर अलाइव देयर ऑलवेज विल बी अप्स एंड डाउन्स. हार भी होगी, जीत भी होगी, दिन भी होगा, रात भी होगी, बट इज दैट वी हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, एंड परसिवियरेंस इज द वर्ड, एज इन हमको बस वी शुड कीप ट्राइंग, एंड सक्सेस विल डेफिनेटली कम इवेंचुअली. सो ये जो आपकी जर्नी थी, आपने बहुत पहले स्टार्ट किया, एट एन एज ऑफ 20 यू स्टार्टेड योर स्टार्टअप्स एंड ऑल दैट. आपका वो बिजनेस माइंडसेट बन चुका था टू डू समथिंग डिफरेंट, एटलीस्ट टू मेक सम मार्क. और इस बीच आप थोड़े सक्सेसफुल भी हुए, आपने जॉब भी किया, और अभी लास्ट 2 साल भी आपका बहुत अच्छा चल रहा था, बट सडनली दिस पैंडेमिक हिट. तो उस पैंडेमिक में आपको क्या समझ में आया? एज इन वाज देयर एनीथिंग न्यू व्हिच यू रियलाइज्ड, या आई मीन was it a setback for you or was it a learning for you? आपने कैसे उस पेंडेमिक को अपने इनिशिएटिव्स में यूज करा? ठीक है, पेंडेमिक जो है उसको टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर टू साइड्स। वन इज कि जहाँ पे एक सपोज लुक एट दी पर्सनल, जो जो फैमिली में जो सिचुएशंस आई थी, बिकॉज आई वाज आल्सो पर्सनली इन्फेक्टेड, एंड मुझे Oh. भी रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने पड़े थे, राइट। सो तो दैट इज वन साइड कि जहाँ पे अगर मैं बिजनेस की बात ना करूँ, अगर मैं खुद पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो देयर आर चैलेंजेस, क्योंकि आई वाज इन्फेक्टेड, माय मदर वाज इन्फेक्टेड, एंड मदर को फिर वो कोविड में से म्यूकर भी हो गया, तो उसमें भी टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। बट इफ सपोज आई टॉक अबाउट द बिजनेस फ्रंट, तो बिजनेस में आई फाउंड इट एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए चैलेंजेस तो जो था, इट वाज अ टाइम। आई मीन मैं हर बार ये देखता हूँ कि
आप जो है आप कोई भी चीज जो है वो आपकी जर्नी जो है वो बनी हुई है, वो जर्नी पे वो पाथ बना हुआ है और वो पाथ पे आप चल रहे हो। अब आगे जाके आपको नहीं पता है कि कोई चैलेंज आ रही है या कोई एक सामने एक रिस्क है, और वो एक रिस्क है कि वो आपके अकेले के रिस्क है या बहुत लोगों के लिए रिस्क है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं खुद को समझूं और कोई भी सिचुएशन हो उसको कैसे अपने बैलेंस कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट लकीली सपोज आई टॉक अबाउट कि पैंडेमिक टाइम फॉर जापान प्रोजेक्ट, तो इट वाज गुड जहाँ पे लोग थे। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मैं बात कर पाया, एंड दैट वाज अ टाइम कि जहाँ पे वी है मैक्सिमम पार्टनरशिप विथ पीपल, जहाँ पे लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहाँ पे वो किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी की स्टोरी लोगों के सामने रख रहे हैं, तो वहाँ पे उनको मीडिया पार्टनर चाहिए था। तो वहाँ पे व्यापार जगत प्लेड बिग रोल की, जहाँ पे आई थिंक 40 ऐसे लोग होंगे कि जिनके साथ हमने 2 महीने में जो लॉकडाउन का रूल था वो 2 महीने में हमने लेजन 40 ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया, और सबके भी कंटेंट को वो हम लोग व्यापार जगत प्लेटफॉर्म पे फीचर करते थे। स्पीकर को भी एक विजिबिलिटी मिलती थी, जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी मजा आता था। तो आई पुट इट दैट वे पेंडेमिक। नहीं, एब्सोल्युटली। और आई थिंक आपकी ये कोशिश बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा। मतलब एज ए सेड, मैंने भी ड्यूरिंग पेंडेमिक आई गॉट एसोसिएटेड विद व्यापार जगत, तो आई नो कि नॉट ओनली आपने एंटरप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म दिया, आपका इस कोशिश, आपकी इस एफर्ट के लिए आई थिंक आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स और स्टेट, रीजनल, जोनल लेवल से बहुत आई थिंक चारों ओर से आपको बहुत प्रशंसा और everybody just liked it. So I think it is well deserved because the amount of hard work you all have put in. So and a lot of celebrities got associated with your platform, and everybody actually encouraged it basically. So many guests coming in and everybody speaking. तो वो खुद भी बहुत informative था, different different fields के लोगों को एक साथ आप लाए। तो I think ये बहुत ही सराहनीय effort था आपकी तरफ से। बिल्कुल। एंड अमेरिका, आई जस्ट वांट टू ऐड वन और टू थिंग्स। तो मतलब जैसे पेंडेमिक की हमने बात करी, तो मैंने बताया कि पेंडेमिक वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और पेंडेमिक जो है उसमें इट वाज अ टाइम व्हेन वी थॉट ऑफ प्लानिंग कन्वेंशन और लोगों को अवार्ड्स देके रिकग्नाइज करना है। तो ये पूरा कंसेप्चुलाइजेशन जो है वो उसी टाइम पे हुआ। एंड अभी आज की डेट पे मैं बात करूं, मतलब सो व्यापार जगत कन्वेंशन एंड अवार्ड्स was the first branch, in terms of जितनी सर्विसेज व्यापार है at that time. Am I audible to you? Yes, yes, you are. या सो दैट वाज द टाइम जहाँ पे हमने व्यापार कन्वेंशन एंड अवार्ड्स 2020 की पहली बार किया। उसके बाद में वी गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे कि जहाँ पे लोग awards दे रहे हैं, बट ऐसे जेन्युइन प्लेटफॉर्म फॉर्म जहाँ पे कंपटीशन होता है और कंपटीशन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और वो एज एन अवार्ड जो है वो एज अ प्राइज विन करते हैं। तो दैट गिव अस लॉट ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद में हमने फैमिली कॉन्फ्रेंस एंड वो स्टार्ट किया। उसके बाद में स्टार्टेड थिंकिंग और व्यापार जगत थिंकिंग, तो हमारा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जो है वो हमने इसे प्रमोट करना स्टार्ट किया। एंड देन वी एंटर्ड इनटू डोमेन जहाँ पे लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। Convince boards. So greenpreneur is something wherein we are recognizing जो क्लाइमेट अपडेट पे बड़ा चैलेंज है। लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, बट सस्टेनेबिलिटी एक्चुअली क्या है और एक सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो इस पे वो सब्जेक्ट जो है उसको लेके हमने ऊपर वी हैव टेकन लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड हमारे प्लेटफॉर्म पे 100+ स्पीकर जो है उनके उनके अलग अलग व्यूज जो है वो भी हमने पब्लिश करी। So we had an convention in 19 people were there, and they shared their stories and experience about the sustainability and sustainable entrepreneurship. So, but all credit goes to COVID. Specifically COVID को नहीं बोलूँगा, but that was a thing that uh, that came in my mind and we started.
और आई थिंक वो बहुत अच्छा था क्योंकि काफी नेगेटिविटी थी, लोग डिप्रेस थे, तो आई थिंक आपके अवार्ड्स के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो स्पीकर्स थे, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोग पॉजिटिविटी फैला रहे थे, तो आई थिंक वो लोगों को बहुत उन्होंने मोटिवेट करा, और एक शिफ्ट था लोगों में, अब होप थी दैट थिंग्स विल बी बेटर। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। सो आई थिंक जिसको बोलते हैं ना, राइट टाइम, सम यू डिड द राइट थिंग एट द राइट टाइम, and you made people motivated, feel positive and happy during those sad and depressing times. So, Vyapar Jagat has actually created a name, and whatever appreciation and recognition it has got, it is very well deserved, because, it is very honest and genuine platform. I personally feel the same. So, और आपका ग्रीन प्रेन्योर कन्वेंशन अवार्ड्स भी अभी अभी हुआ, उसके बारे में आपने बताया, एंड आई थिंक मल्टीपल इनिशिएटिव्स यू आर रनिंग। सो आर लिसनर्स जो अभी हमें सुन रहे हैं, जो बाद में, व्यापार जगत इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, दे हैव देयर ओन यूट्यूब चैनल एज वेल। तो आप सारी रिकॉर्डिंग, सारे सेशंस वहां भी देख सकते हैं, और दे हैव एनी क्वेरीज, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट व्यापार जगत और डॉक्टर प्रवीण, ही इज वेरी हेल्पफुल, and I'm sure you'll only gain from this platform in terms of knowledge, or other things. He's absolutely wonderful, and so is his platform. So sir, before we wind up, a quick rapid fire with you, so just be ready. Okay, you don't have to think much, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको जल्दी जल्दी बोलना है। तो आपको किस चीज से गुस्सा आता है, और कौन सी चीज आपको होप देती है? कि जो गुस्सा आता है, जहां पे मैं बोलूंगा कि टाइम, मतलब कोई भी चीज टाइम पे नहीं होती है तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है। बट आई एम अ विपश्यक, तो मैं कंट्रोल करने का ट्राई करता हूँ। एंड जो आपने बताया कि होप, तो होप के बारे में मैं ये बोलूंगा कि आई ऑलवेज, जब भी कोई चीज बिगड़ती है या जब भी गुस्सा आता है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। एंड पॉजिटिव साइड इज ऑलवेज बिगर देन जो आपको नेगेटिव थॉट आया है उसको। तो दैट्स हाउ आई बैलेंस। या थैंक यू। या एंड एज आई सेड, आपने पहले भी बोला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल इज द की। लाइफ में कुछ भी पाने के लिए, चाहे मुसीबत हो, चाहे अच्छा टाइम हो, चाहे बुरा टाइम हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल इज द की टेक अवे। दो दो चीजें यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ, और यू विश पीपल वुड नो अबाउट यू, मतलब दो चीजें जो लोगों को नहीं पता है आपके बारे में। हाँ, दो चीजें। So one is, I think, one thing is, so I'm a very introvert, to be very honest, and काफी सारी चीजें जो है, मतलब एक जो पर्सनल थॉट में से मेरा ऐसा था कि व्यापार जगत मैंने क्यों स्टार्ट किया हो, और तो मतलब द रीजन ये था कि आई वांट टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट। एक चीज ये बोलूंगा मैं। सेकंड इज, आई विल से कि आई आई वांट टू, आई थिंक आई एम वीक इन रीडिंग बुक्स। काफी सारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है वो बातें करते रहते हैं, बट आई आल्सो ट्राइड, आई हैड a good collection, but I have read 2 3 books, but very new to something जो now I'm starting. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। आपको 3 शब्द, अगर अपने बारे में आपको डिफाइन करना हो, तो वो कौन से 3 शब्द होंगे? देखिए, फर्स्ट विल बी आई एम एन एंटरप्रेन्योर। So one is entrepreneur. The second is I am a good listener. I love listening talks and people. And third, say I would say I am a thoughtful person. And fourth, अगर if you allow, तो I am also trying to be more resilient these days. So yeah, resilient is something which you can count. Yeah. Absolutely wonderful. And we also agree to this. You are a great entrepreneur and a good human being who is helping other entrepreneurs also to grow with you, which is your, vision also, that, you are growing along with people, right? So because so I think that is your one of the finest virtue, and you're absolutely a good human being. So before we end, any audience, any you would want to tell any message to our audience, our listeners? देखिए, मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, या एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात ना करें और कुछ भी चीज की अगर बात करें, तो
challenges आएगी, and there will be risk also. You have to understand the situations, timing, and मतलब ऐसा ऐसा टाइम मैंने भी देखा है कि जहाँ पे मेरी सोने की अंगूठी बेच के मुझे घर का रेंट पे करना पड़ा है ना। ऐसा ऐसा काफी बार हुआ है कि सैलरी देने के लिए दूसरे के पास हाथ फैलाने पड़े हैं। तो ये होता है, बट आई माई मैसेज विल बी कि बी योरसेल्फ, लिव योरसेल्फ, एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। दूसरी मैं ये बोलूंगा कि आप किसी के साथ कंपेयर मत करो। आपको आपको जो लाइफ मिली है वो आपकी है, वो आप हो। आप आपकी लाइफ जो है वो किसी दूसरे की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। एंड वन मोर थिंग आई वुड लव टू से इज, यहाँ पे अगर हम जब भी कोई एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये पर्टिकुलर चीज जो है वो सक्सेसफुल हुई तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या फिर ये particular चीज जो है वो फेल हुई तो मैं भी fail हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। चीजें जो है उसको आपको बहुत उसके रीजन ढूंढने चाहिए कि सक्सेसफुल है तो क्यों सक्सेसफुल है, अगर कोई चीज फेल होती है तो क्यों फेल होती है। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड रीजन, एंड डेफिनेटली यू विल हैव रीजन कि जहाँ पे आपका आपका आप जो हो और उसी हिसाब से यू कैन मेक योर ओन पाथ। जो भी सारे रीजंस है तो लेके, और आप मतलब हर बार कुछ भी चीजें देखो, कुछ भी सोचो, तो ऑलवेज आस्किंग व्हाई। कि अगर समझो कि ये आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया, क्यों, वाई। अगर ये हमने बोला कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, वाई। Start asking why question for each and everything, small thing. Then you will improve yourself. आपको ऐसी काफी सारी आपकी जो inner strength है वो बाहर आएगी, and you yourself be a very productive person. आपको फिर ऐसा कभी नहीं लगेगा कि यार ये गलत हो गया, या फिर ये नहीं करना था, वो हो गया। तो you will be feel more proud on yourself. I think the success, key to success is be yourself and keep self-confidence, because that is the most powerful thing. Keep self-confidence. लोग आपके बारे में जो भी सोचे, जो भी, everybody has their own perceptions and their own thought process. So never compare your thought process, your perception with others. So don't worry about it. That's it. एब्सोल्युटली, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट। सो बिल्कुल आपने सही कहा कि आपकी जर्नी में आई एम श्योर लोगों ने जज किया होगा और बोला होगा इस रास्ते मत जाओ, बट आई थिंक वी हैव टू हैव दैट कैपेबिलिटी, दैट करेज कि हम रिस्क लें और आगे बढ़ें और अपनी गलतियों से सीखें। इट्स नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल एंड अ रोजी जर्नी, बट दैट इज हाउ एटलीस्ट एज आई एम सेइंग कुछ ना कुछ सिखा के जाती है हर हर हार। सो विद दिस आई अगेन थोड़ा सा मेरा ही एग्जांपल आपको, तो हम क्या करते हैं, अब हम देखो ये रेटेड अवार्ड्स का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे ये मेरा जो ब्रांड नेम जो है, मेरी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने इसमें डाल दिया है। अब मुझे इसको बड़ा नाम बनाना है, तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा कि मैं कहीं पे भी किसी भी कैंडिडेट के साथ, किसी भी नॉमिनी के साथ इनजस्टिस हो। मतलब हम लोग मैक्सिमम टाइम वो पर्टिकुलर चीज पे स्पेंड करते हैं, रिसर्च करने में, जूरी के साथ बात करने में, जूरी जो भी डिसीजन लेते हैं उनको गाइड करने में, पूरी चीजों में। तो फिर भी व्हेन वी अनाउंस अवार्ड्स, जो विनर्स है उनके साइड से बहुत सारे कांग्रेचुलेशन में मैसेज आ जाते हैं मुझे। जो न्यू विन किए हैं, they start doubting on jury, they start doubting on their platform, they start doubting on me. तो ये दोनों साइड है, मतलब, बट आई वांट टू कीप द पॉजिटिव साइड जो है, कि जहाँ पे जितने लोगों को ये चीज समझ में आती है। कई बार क्या होता है कि someone is big, देखिए ये क्या होता है कि बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस है, अब बिजनेस का नाम भी बहुत बड़ा है, बट उन्होंने जूरी का फॉर्म ही नहीं सबमिट किया। फिर वो जो है वो हमें तो कोई, अल्टीमेटली हमारा रोल ये है कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ये चीज जो है आपको, तो कई बार लोग नहीं देते हैं, देन स्टार्ट ब्लेमिंग कि आपको पता है हमारा नाम कितना बड़ा है। आई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी हैव टू लिसन देम। हमको फिर बताते हैं कि सर आपका नाम बहुत बड़ा है, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं पास में, बट दिस इज हाउ आवर प्रोसेस इज। तो
कि यू हैव टू बी योरसेल्फ, आपको आपकी प्रोसेस बननी है, आपको आपका पार्ट बनाना है, एंड लोग ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे आपकी पार्ट पे, जर्नी में सपोर्ट करेंगे। तो दैट इज व्हाट आई हैव लर्न सो फार। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम कुछ भी करते हैं, चाहे कितनी भी ऑनेस्टी रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, people might have their own apprehensions, but you rightly said कि व्यापार जगत is a very genuine platform, very honest platform, and I'm sure व्यापार जगत will rise and keep rising. So with that, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और अपनी इंस्पायरिंग जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, and we wish you all the very best, Dr. Praveen. थैंक यू सो मच। Thank you to our listeners. Good night. Thank you. Good night.